نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, I think you will be in the good of health by the grace of Allah, and it is recommended nowadays mostly to stay at homes unless there are necessary work out of home. Dear students, the topics which we are going to cover today are company constitution, functional units of an organization, and management of an organization. Let's start with the topics. Company's further features. Briefly, we talk about company's further features. Independent existence. The companies have their independent existence. Divided. Whether the company is whether public limited or private company. It is divided into shareholders, or if it is a private company, there will be the members of the company. Normally there are greater than one shareholder, but according to the 1992 Act, which allows a single member also to he can own a company. Now we are going to talk about company constitutions. کمپنی کے آئنس کی بات کرتے ہیں جس میں مینلی 3 components ہیں. نمبر 1 شیئر کیپٹل, نمبر 2 کمپنی کنسٹیٹیوشن, اینڈ نمبر 3 ڈائریکٹرز ریسپانسبلٹیز. فرسٹ آف آل شیئر کیپٹل. دا شیئر ہولڈرز سبسکرائبرز اون کمپنی. بیسیکلی کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہی بیسیکلی کمپنی کو اون کر رہے ہوتے ہیں. اور جب کمپنی سٹارٹ ہوتی ہے, ایٹ سٹارٹ آف دا کمپنی, تو اس کے جتنا بھی آتھورائزڈ شیئر کیپٹل ہوتا ہے, اور ٹوٹل کیپٹل کمپنی میں کتنا ہوگا, کمپنی کے اندر شیئر ہولڈرز کو کتنے شیئرز جو ان سے نمبر آف شیئرز الاٹ کیے جائیں گے ہر ممبر کو, ہر شیئر ہولڈر کو, اور نامینل ویلیو پر شیئر کتنی ہوگی. فار ایگزامپل جس طرح کے 100 شیئرز ایک کمپنی دے رہی ہے اپنے ایٹ دا ریٹ آف £1, 1 پاؤنڈ 100 شیئرز جو ان سے ہیں پر 1 پاؤنڈ جو ان سے ہے وہ ان کو دیے جا رہے ہیں. یہاں پہ جو اہم ترین چیز سمجھنے والی ہے کہ اگر ایک ممبرز جو شیئر ہولڈرز جو شیئرز کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں, اگر کمپنی کے شیئرز کی پرائسز گرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیبٹس جو ان سے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں, اور ایسٹس شیئر ہولڈر کے کم ہوتے جاتے ہیں, شیئرز کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر ڈیبٹس ان کی ایسٹس سے یعنی ان کی شیئر ویلیو سے اگر ان کے ڈیبٹس بڑھ جائیں تو شیئر ہولڈرز اپنے شیئرز لوز کر دیتے ہیں. سیکنڈلی کمپنی کنسٹیٹیوشن. کمپنی کنسٹیٹیوشن, کمپنی کے آئین کی ہم بات کریں تو کمپنی میں جو آئین اور قوانین جو ہوتے ہیں اس میں 3 طرح کے مین ڈاکومنٹس ہیں. میمورینڈم آف ایسوسیشن جو کنٹرول کرتے ہیں ایکسٹرنل ریلیشنز کو, آرٹیکلز آف ایسوسیشن جو کنٹرول کرتے ہیں انٹرنل ریلیشنز کو, اور تھرڈلی شیئر ہولڈرز ایگریمنٹ. یہ 3 طرح کے ڈاکومنٹ یہ کمپنی کنسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جن کو ہم بریفلی آگے ڈسکس کرتے ہیں. میمورینڈم آف ایسوسیشن. کمپنی نیم, ریسٹرکشنز. یہ کمپنی نیم کی جب بات آئے گی تو اس کے ساتھ یہ بھی طے کیا جائے گا کہ کمپنی کو جن پروڈکٹس کا لائسنس دیا جائے گا کمپنی صرف وہی پروڈکٹس جو سی ہے وہ تیار کر سکتی ہے اور مارکیٹ میں سیل کر سکتی ہے. تو اس معاملے میں کمپنی ریسٹرکٹڈ ہوگی کہ وہ اپنے لائسنس سے ہٹ کے اگر کوئی اور پروڈکٹس پریپیئر کرنا شروع کر دے اور ان کو سیل آؤٹ کرنا شروع کر دے تو ان کو فائن ہو سکتا ہے, ان کو جرمانے ادا کرنے پڑ سکتے ہیں.
नंबर सेकेंडली कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन, दूसरा ये देखा जाएगा कि कंट्री की जो कंपनी है वो किस कंट्री के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है. फॉर एग्जांपल इंग्लैंड एंड वेल्स, स्कॉटलैंड एक्सेट्रा. जस्ट फॉर एग्जांपल दीज नेम्स आर गिवन. थर्डली ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कंपनी बेसिकली कंपनी जो सी है वो कंपनी की टाइप क्या है. कंपनीज एक्ट 1989 अलाउ जनरल कमर्शियल कंपनी. आम तौर पर ये होता है कि कंपनीज को एक्ट 1989 के तहत जनरल कमर्शियल कंपनीज करार दे दिया गया है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अ लायबिलिटी क्लास. लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड. लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड होगी, यानी हर मेंबर ने जितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर की होगी उसके मुताबिक ही कंपनी के जो लोन्स हैं, जो मोर्टगेजेस हैं, उन या कंपनी के कोई अकाउंट्स पेएबल वगैरह हैं, तो मेंबर्स अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक, प्रोपोर्शन के मुताबिक जो सा है वो अपनी लायबिलिटी, जो उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी. ऑथोराइज्ड शेयर वैल्यू, नॉमिनल शेयर वैल्यू एंड नंबर. ऑथोराइज्ड शेयर वैल्यू में ये है कि जो उनसे हर मेंबर को कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए जाएंगे और नॉमिनल वैल्यू शेयर की कितनी होगी. सेकंड डॉक्यूमेंट जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो डील करता है इंटरनल, कंपनी के इंटरनल रिलेशन से, जिसमें रूल्स ऑफ शेयर कैपिटल, जितने भी कैपिटल को शेयर करने के लिए तमाम मेंबर्स के शेयर्स की तादाद, उनकी नॉमिनल वैल्यू और तमाम रूल्स जितने भी हैं वो इसमें डिस्कस किए जाएंगे. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के जो रूल्स हैं वो तमाम इसमें आ जाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ही होंगे. मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स की मीटिंग्स का क्या तरीकाकार होगा, मीटिंग किस तरह कॉल की जाएगी और मेंबर्स की अक्सरियत को जिस तरह फॉलो किया जाएगा वोटिंग वगैरह में, वो तमाम इसमें मेंशन होगा, इन्हीं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ही मेंशन होगा. रूल्स गवर्निंग डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट्स, डायरेक्टर्स, कंपनी के जो डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसके बारे में तमाम रूल्स जो हैं, उसको जो तमाम रूल उस पर जो आयद होते हैं वो इन्हीं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस किए गए हैं. पावर ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर्स हैं, जो वो कंपनी में मुख्तलिफ शोबों में अपनी एक्सरसाइज करेंगे, वो तमाम इसमें बयान की गई हैं. डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स, कंपनी के जितने भी डिविडेंड्स हैं, यानी कंपनी के जो एट द एंड ऑफ ईयर कंपनी के जितने भी डिविडेंड्स होते हैं, शेयर के ऊपर जितनी भी इंक्रीज रेट या डिक्रीज रेट, उसके मुताबिक कंपनी के मेंबर्स को शेयर जो इन्वेस्ट करते हैं उन तमाम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिवाइड किया जाता है. और कोई रिजर्व्स वगैरह कंपनी के जो होते हैं उनके बारे में भी कवानीन इसी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बयान किए गए हैं. आगे हम बात करते हैं सी. थर्डली शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट्स, ये प्रोटेक्ट करते हैं तमाम माइनर शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, यानी तमाम माइनर शेयर होल्डर्स जो होंगे उनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करेंगे ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स. इनमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर कोई जनरल मीटिंग कॉल की जाती है तमाम मेंबर्स की, तो उस मीटिंग के अंदर अगर 75% मेजॉरिटी अगर किसी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के किसी रूल के अंदर कोई तब्दीली करना चाहती है तो वो तब्दीली की जा सकती है. एग्रीमेंट बिटवीन शेयर होल्डर्स, इसमें जो भी एग्रीमेंट जो उनसे हैं शेयर होल्डर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी तमाम शराइत रखी गई हैं, तय की गई हैं. तमाम जनरल मेंबर्स को, तमाम मेंबर्स को साइन करना पड़ेंगे इसमें, और इसमें ये तरीकाकार तय किया जाएगा कि वोटिंग किस तरह की जाएगी. आगे हम बात करते हैं थर्डली
कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड कंपोनेंट है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डायरेक्टर्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स इलेक्ट करेंगे, और जब डायरेक्टर्स की जब इलेक्ट किए जाएंगे तो उनमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे, उनको ऑनेस्ट होना चाहिए, वो अपने इंटरेस्ट जो उनसे हैं वो डिक्लेयर करेंगे, अपने असासाजात, कंपनी के मामलात को शफाफियत से चलाने के लिए वो अपने इंटरेस्ट को डिक्लेयर करेंगे। अवेयर ऑफ कंपनीज ट्रेडिंग पोजीशन, कंपनी की जो ट्रेडिंग पोजीशन होगी वो इससे ना सिर्फ ये कि पूरी तरह आगाह होंगे, बल्कि कंपनी के मेंबर्स को जनरल मीटिंग्स में बाकी मेंबर्स को भी आगाह करते रहेंगे। एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, जो कंपनी के जो एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होंगे वो उनके लिए भी जो शराइत जो कवानीन तय होंगे वो इसी ये डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर ये वो तमाम कवानीन बयान किए गए होंगे। कंपनी का एक सेक्रेटरी भी होगा और वो डायरेक्टर्स में से भी चुना जा सकता है। Dear students, next we are going to discuss about the functional units of an organization. There are 5 groups of functions exists in almost in any organization. Number 1, production, activities that directly contribute to creating the products or services that the company sells. इसमें ये वो तमाम एक्टिविटीज़ को ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंट्रोल करेगी जो कंपनी की प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने में या सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को आगे मुहैया करने के लिए मुहैया करनी है, वो तमाम उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट जिम्मेदार होगी। सेकेंडली, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी activities necessary to ensure that quality of the products and services produced is maintained at the agreed level. जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो तमाम उन क्वालिटी एक्टिविटीज़ को जो कंपनी की प्रोडक्ट्स को की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उनको उस लेवल पे मेंटेन करने के लिए जो कंपनी ने अपने मार्केट में तय किया है उस लेवल पे मेंटेन करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट जिम्मेदार होगी। नंबर 3, सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स इज कंसर्न डायरेक्टली विद सेलिंग द प्रोडक्ट while marketing is concerned with establishing the environment in which the product is sold, for example through advertising, and with deciding how the range of products sold by the company should develop. सेल्स और मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट होगा, मैनेजमेंट जो होगी, वो सेल्स के साथ डायरेक्टली कंसर्न्ड होगी कि मार्केट में प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग है उसको पूरी तरह से मैनेज करेगी, ऐसी एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करेगी जिसमें कंपनी की प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो अच्छे तरीके से सेल आउट हों। उसके लिए उनको बेहतरीन किस्म की एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी और उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपनी की जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी जो सी है उसको कंपनी को उसके लिए क्या ऐसे तरीक़ाकार अपनाने पड़ेंगे जिससे कंपनी की प्रोडक्ट्स जो सी हैं तमाम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में अच्छे तरीके से वो सेल आउट हों। Dear students, next we are going to discuss about finance and administration. The finance department will be responsible to pay all type of bills, to look after funds, and all central services related to accounts will be dealt here. Dear students, आपको अच्छी तरह पता है कि फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा जितनी भी कंपनी की बिलिंग्स वगैरह होंगी जो पे करने हैं, और जितने भी कंपनी के जो फंड्स हैं और जो सेंट्रल सर्विसेज अकाउंट्स से रिलेटेड जितनी भी हैं वो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इसको डील करेगा।
Next, number 5, research and development. How can the company do better things than it already does, and what other things might it profitably be done? रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो शोबा है मैनेजमेंट, वो ये देखेगी कि कंपनी में जो काम पहले से चल रहे हैं, कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रही है, उसको और पहले से किस तरह बेहतर किया जा सकता है पहले से, और जो कंपनी की और कंपनी के जो मामलात हैं इनको और किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है कि कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म आ रही है जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन which operates in more than one country. The most obvious examples are in the field of food and drink. Geographical organizations वो होती हैं जो नॉर्मली एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रही होती हैं, और ज़्यादातर ये जिन शोबाजात में काम कर रही हैं वो फूड और ड्रिंक है। Dear students, next we are going to talk about two terms. What is centralization and decentralization? What is difference between them? In a centralized organization, the detailed operational decisions are taken at the center. In a decentralized organization, as many details as possible are settled at the local level. इसमें आप देखें कि सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जिनमें तमाम ऑपरेशनल डिसीजंस जो हैं वो कंपनी के हेडक्वार्टर के अंदर मेनली हेडक्वार्टर में लिए जाते हैं, और बाद में वो रूल्स और कवानीन यानी कंपनीज जो सी हैं वो सेंट्रली ऑपरेट कर रही होती हैं, हेडक्वार्टर से ही तमाम ऑर्डर्स जाते हैं ब्रांचेस को अपनी वर्किंग के लिए। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जहाँ पे ज़्यादातर जो मामलात होते हैं वो लोकल साइट्स पे कंपनी की लोकल अपनी ब्रांचेस के अंदर ही डील कर लिए जाते हैं। जो मेन कवानीन होते हैं, कुछ कवानीन जो मेन कंपनी के बुनियादी कवानीन हैं वो सेंटर से ही डील किए जा रहे होते हैं। Dear students, next we are going to talk about the management. First, managers of organizations can be mainly the management can be main managers may be project manager, production manager, general manager and corporate manager. The goal of project manager is to produce systems which meet the user's needs on time and within budget. प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ऐसे सिस्टम्स प्रोड्यूस करें जो कि ना सिर्फ ये कि टाइम पे विद इन टाइम मतलब प्रोड्यूस हो जाएं, उनको प्रोड्यूस किया जाए और विद इन अलॉटेड बजट उनको तैयार किया जाए। देयर मेन कंसर्न्स आर देयरफॉर प्लानिंग, प्रोग्रेस, मॉनिटरिंग, एक्विजिशन and allocation of resources and quality control. इसका मतलब ये हुआ कि मेनली इनके जो कंसर्न्स हैं वो ये कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग भी करते हैं, ना सिर्फ ये कि प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करते हैं प्रोडक्ट के साथ साथ, बल्कि एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को जो रिसोर्सेज प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको न सिर्फ एक्वायर करते हैं बल्कि इनको एलोकेट भी करते हैं और क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। और इनके जो बेस्ट टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए ये कंपनी की प्रोजेक्ट्स की मेजरिंग करते हैं, उसके लिए जो टूल्स हैं उनमें मेनली ये बार चार्ट्स को यूज़ करते हैं, एक्टिविटी नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस को, एक्सेट्रा। Next, production manager. Production management is concerned with productivity, efficiency and maintenance of quality. Production management mainly concerned आपको पता है dear students productivity के साथ, efficiency
اور مینٹیننس آف کوالٹی کے ساتھ یہ لنکڈ ہیں. جنرل مینیجر میں آپ کی جنرل مینجمنٹ جو ہوتی ہے مینلی یہ آپ کی کمپنی کو اوور آل ایز اے ہول یہ کمپنی کو رن کر رہے ہوتے ہیں اور کمپنی کی باقی مینجمنٹ کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں, باقی معاملات کو ساتھ ساتھ مانیٹر کرتے ہیں اور کمپنی کو اوور آل ایز اے ہول رن کر رہے ہوتے ہیں. کارپوریٹ managers are responsible for the long-term strategy of the organization, monitor the overall performance of the organization, and be prepared to handle serious problems which arise anywhere in the organization. جو کارپوریٹ مینیجرز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کمپنی کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کو پلان آؤٹ کرتے ہیں, لانگ ٹرم اسٹریٹجی کو ڈیزائن کرتے ہیں, اس کے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں. اور وہ نہ صرف یہ کہ کمپنی کے اندر آرگنائزیشن کی نہ صرف یہ کہ اوور آل مانیٹرنگ کرتے ہیں بلکہ کمپنی کی پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں, اور اگر کوئی سیریس قسم کے پرابلمز کہیں پہ کوئی معاملات ایسے سیریس کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اور کمپنی کے اندر ان کو ہینڈل کرتے ہیں اور مینج کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, it's all over. In this lecture we have discussed about the company constitution, functional organization, functional units of the organization and management of the organization. Dear students, Allah Hafiz.